Which sentence did I give you yesterday? You gave me uh, was he smart sentence yesterday. Soumya, did I give you any sentence yesterday? Yes, ma'am, you gave me one sentence yesterday. Which sentence did I give you? Which sentence did I give you yesterday? You gave me, was he smart yesterday? Okay, please write down next sentence in the same chapter. That is be past. यह सही नहीं था. यह सही नहीं था. Soumya, once repeat it, please. हाँ, यह सही नहीं था. Talk to somebody who is calling you. Uh, Mehta madam, who has to make this sentence? I have to make this sentence. Please go ahead. Is be past. No, please This is do not disturb the this sentence. process. This sentence is related to be past. Yes. This sentence is negative sentence. ये थोड़ा तो गलत हो गया, मैं सही करवाता हूँ. Firstly, It is a negative sentence. It is a negative sentence. it is a negative sentence. Firstly, we will take Please, subject. please speak little up, We little will up. take the subject. Firstly, we oh I can't put this. Oh. Firstly, I will take the subject Now you are and the so subject and clear. Now you are so loud and clear. firstly I will take the subject and the subject is And at the subject I think is it and the subject is it. Then I will take main verb and the main verb. Then I will take the main verb and the main verb is was. Madam, this is a personal comment. Don't take it ill. You have applied lipstick today on your face. Please keep applying lipstick in the grammar. Then thereafter we will take V is wrong, madam. oh V sorry I will take not I will take the not इस and इसमें it द is इसमें द की जगह. जरूरत है. इसको एक बार फिर से बोल दीजिए. ये देखिए सेकंड नंबर पे जो है. Okay, then I will take the main and the main verb is was.
thereafter I will take not. इसका पहले हमें यहाँ पे नाम, इसको कुछ नाम से पुकारें। Yeah. I will take the negative word, यस, करेक्ट। and it is not. And the negative word is Is and the negative word is not. correct. Later on, I will take the correct No. and the right. Then I will take the an adjective or noun. Yes. This is Then so nice and confident sentence. Last sentence was so nice, correct, and confident. Lastly, I will take the adjective or noun. or noun, Adjective or noun is absolutely correct. and the adjective or noun is correct. At last, we will put, I will put a sentence is it was not correct. Thank you. Now I want to repeat this thing. दोस्तों, you will have to speak adjective or noun always. And lastly, I will inform you, I will decide and inform you what is this actually. So, but you will have to speak these two words. And now I'm deciding and finalizing. This is an adjective. This is an adjective. Correct. Okay. Uh, Soumya has left. She said she informed in the message, I will be back in 5 minutes. Okay. Write down the next sentence, ma'am. There are only two guys, you and I. Saket joined and Saket left. Maybe network issue is going on. Now Saket is back. The next sentence is यह क्या था? हिंदी सेंटेंस इज यह क्या था? प्रश्नवाचक चिन्ह. Who has to make this sentence? I have to make that sentence. Actually, Saket has come as you can see on the screen. So Okay. I think we should give this chance to Saket Okay. because you Thank you. made the last sentence. So okay, I'm asking the as usual question. Who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. Please go ahead. This sentence is related to be present, be past. It is an WS sentence. Come It is again, a please. WS sentence. Now you're loud and clear. Uh, Firstly, I will take the WH word and the WH word. साकिब, एक मिनट. एक चीज पूछ लेते हैं. जस्ट वन थिंग आई एम आस्किंग. साकिब, आपने कैसे पहचाना ये WH सेंटेंस? सर क्योंकि इसमें स्पीकर प्लीज.
सर क्या लगा हुआ था इसमें? It is not correct answer, Saket. It is not correct answer. Madam, can you tell me, आपने कैसे पहचाना यह WH वाक्य है? Sir, it shows question. ये क्वेश्चन पूछ रहा है. It is wrong answer. I'm sorry. अच्छा हुआ मैंने ये पूछ लिया. I don't know, sir. Correct answer, I don't. I know you don't know. That's why I wanted to make it clear. Okay. Soumya is coming after 5 minutes, but meanwhile, you can try, Saket can try. Sir, I have to try the sentence making or what? Okay. और Let तो me लगाना. clear. हाँ, let me clear one thing. हम बार बार ये कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, सेंटेंस मेकिंग इज नेवर इम्पॉर्टेंट इन दिस क्लास. सेंटेंस तो कोई भी नकल करके दूसरे बैच का वीडियो देख के उतार सकता है. दिस इज नेवर इम्पॉर्टेंट. द इम्पॉर्टेंट इज if you are making any sentence, are you sure or not that whatever you are putting one by one, you should know that the grammar of every word. That is important. क्योंकि 27 साल तक ऐसे ही होता आया है कि वो किसी से पूछ के आ गए, मम्मी से पापा से, और कर लिया. लेकिन यहाँ एक 3 लेटर का सेंटेंस बनाने के लिए आपको उसकी बाल की खाल निकालना पड़ती है, और उससे हमें पता चलता है कि स्टूडेंट उस ग्रामर से परिचित है या नहीं. नहीं तो फिर वो तो 27 साल जैसे रट्टू तोते जैसा हो गया ना. अब सेंटेंस तो सही, इतना सरल है, सब किसी को पता है कि वो कैसे बनेगा. लेकिन डू यू नो एग्जैक्ट ग्रामर और नॉट? दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट. दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस क्लास. तो बताइए, आपने कैसे पहचाना कि ये WH सेंटेंस है? हिंदी में बताइए. सर, आपने पूछा यह है क्या था, तो क्या के लिए तो क्वेश्चन ही हो गया ना सर. इट मीन्स इट इज अ क्वेश्चन. आप जो उत्तर दे रही हैं वो हम लोग सामान्य जो बातचीत करते हैं उस प्रकार का उत्तर दे रही हैं. और मुझे अपेक्षा है आपसे, जैसे सौम्या, अगर अभी सौम्या होती तो वो एक एक्यूरेट आंसर देती, व्याकरण का आंसर देती. तो हम थोड़ा देर वेट कर सकते हैं. ओके सर. साकेत भी एक्यूरेट ग्रामेटिकल आंसर नहीं दे रहा है. Saket is not giving accurate grammatical answer. You are also not giving accurate grammatical answer. Sentence is, there is a 3-letter sentence. Sentence is not important. I am telling you again and again. Making one sentence is never important in this class. Because while making 3-letter sentence, you speak 9 to 10 sentences of your own. This is important. Of your own. अब देखिए, आप पूरी प्रक्रिया को चलिए. अब ज्यादा लोग नहीं. सर जी. क्या वॉर सर, देयर इज ए WH word. It means it is question. WH word mean क्या is a WH word. So we can say it I is am question. satisfied. I am satisfied with this answer, but I am
70% satisfied with this answer. Let him try again. Sir, because Now you mute yourself, Mehta madam. Saket will try. sir, because verb is missing in this sentence. चलिए एक बड़ी खूबसूरत बात बताते हैं दोस्तों, इसको आप गांठ बांध के रख लो। बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है, एक चैप्टर है पूरी इंग्लिश में जिसमें बिना सब्जेक्ट के बन सकता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के भी सेंटेंस बन सकता है इंग्लिश में, लेकिन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता इंग्लिश। वर्ब के बिना कोई नहीं बन सकता, तुम उठा के देख लो, छान लो। वर्ब ही नहीं है तो क्या सेंटेंस बनेगा? जब कोई हरकत ही नहीं है तो क्या वाक्य बनेगा? सोच के देखिए, सरल भाषा में हम बोल रहे हैं भाई। किसी सेंटेंस में किसी का कुछ करना, होना, आना, जाना, खाना पीना कुछ तो बताया जाता है। जैसे आई एम टीचिंग, कौन सी क्रिया बताई जा रही है? टीचिंग। पढ़ाने की क्रिया बताई जा रही है। तो बिना क्रिया के क्या कभी वाक्य बनेगा? देखिए कितनी अच्छी बात हो रही है। और अब अपने पास समय का कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना बहुत सारे लोग हैं, तो हम बड़े आराम से इस चीज को अब एंजॉय करते हैं। आप भी एंजॉय कीजिए, आप इसमें गिल्टी फील नहीं कीजिए, बल्कि आप इसको ऐसा देखिए कि आज तक साकेत के मन में ये जो एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, आज जाके क्लियर हो गया। और हो सकता है प्रमिला मैडम के जहन में भी ये बात नहीं होगी, तो आज उनकी भी क्लियर हो गई। सर वर्ब इज प्रेजेंट, वर्ब तो है इसमें, वर्ब वॉज इज द मेन वर्ब, वॉज इज द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस. So I know without verb we can't make any sentence. Verb वेरी is नाइस, compulsory. Verb is वेरी compulsory. वेरी नाइस। एक्चुअली मैं जब भी कोई चीज पूछता हूँ दोस्तों, तो वो मैंने पहले कहीं ना कहीं बताई होती है, तभी मैं पूछता हूँ, नहीं तो फिर मैं शुड लगा देता हूँ। जैसे व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर जाना, तो फिर मैं शुड लगा देता हूँ, फिर आपका उत्तर सही हो गलत हो वो तो मैं अनुमान लगवा रहा हूँ, तो नो प्रॉब्लम, देर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन जो चीज मैंने सिखाई है कभी ना कभी, बस वही जानने की इच्छा होती। अब अगर 8-5 लोग होते तो एक ना एक व्यक्ति इसका एक्यूरेट यानी सटीक जवाब देता। तो जब तक सौम्य नहीं आ रहे, हम सौम्य के भरोसे तो नहीं रहेंगे। आप ट्राई करो, फिर ये ट्राई करें, फिर हो सकता है दोनों मिलकर ही कुछ समाधान निकाल लें। Sir, I am sure I was not there. I was not that time when you teach कोई बात this. नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स I am ओके। sure. नहीं, एक चीज But I और know what but I know what means WH word. WH word shows questions. Every WH word means question. I said I am satisfied with your answer, but I'm 70% satisfied. No. Oh, yeah. I I can say said. 80% satisfied, but there is 20% missing. Soumya has come. Let's check how she answers. Soumya, एक वाक्य मैंने दिया है. Firstly, be visible so that I can be sure that you are listening. सौम्या बी विजिबल, हाँ। सौम्या एक सेंटेंस मैंने दिया, व्हाट इज द सेंटेंस साकिब? वह क्या था? ओके, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सप्लेनेशन साकिब? Firstly, I will take the WH word. सौम्या, हमने सवाल किया इनसे
अचानक कर लिया ऐसे ही कि आपने कैसे पहचाना कि ये WH सेंटेंस। तो अभी दोनों के आंसर, दोनों ने काफी प्रयास किया, एक्यूरेट आंसर नहीं मिला मुझे। ये WH सेंटेंस कैसे है? मैं लिख देता हूं। Saket, I agree that this is a WH sentence. हाँ सौम्या, सॉरी सौम्या स्पीक। सर के क्या है? बेटा योर वॉइस इज चॉपिंग, एक बार म्यूट करके फिर अनम्यूट करके देखो, और नहीं तो ईयरफोन को अच्छे से, जैक को अच्छे से देखो लगा है कि नहीं। स्पीक समथिंग। सर Yeah, yeah. नाउ आई एम ऑडिबल? You are audible, still breaking voice, but you are audible. Speak. सर इस वाक्य की शब्द आ रहे हैं, इसलिए ये WH सेंटेंस। Come again. सर इस वाक्य के बीच में क्या शब्द आ रहा है, इसलिए ये WH सेंटेंस। इतनी सी चीज थी बड़े भाई, इतनी सी चीज, लेकिन हर बड़े इन्वेंशन में, हर बड़ी योजना में इतनी बारीक सी चीजें ही बहुत महत्वपूर्ण। पूरा खेल इसी पे है दोस्त। यही क्या अगर शुरू में चला जाए तो प्रश्न तो तब भी रहेगा, लेकिन फिर प्रश्न की कैटेगरी बदल जाएगी। यही तो सबसे ज्यादा मात खाते हैं बच्चे। स्नेहा जो है ना, वो यही तो, इसी में तो पूरी कंफ्यूज्ड है। वो हर जगह वॉट लगा देती है। ध्यान दिया स्नेहा का? पूरा गेम इस पे है। ये शब्द कहाँ पे आया है हिंदी में, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमें तो सुनाई दे गया टूटता टूटता टूटता। मैडम डिड यू लिसन? सौम्या? या आई हैव लिसन। साकिब डिड यू हियर सौम्या? Yes, sir. I heard. साकिब क्या आपने सौम्या को सुना? हाँ सर, मैंने सौम्या को सुना। अब मेरा क्वेश्चन मेहता मैडम से करो सेम। मैडम, did you hear सौम्या? यस आई हियर्ड सौम्या। Sorry, ये मैडम. सुना था मुझे, यही यस सुना। आई हियर्ड, आई हैव। Sorry, madam. Oh, What are the I forms of heard. hear? Sorry, I heard. Second Uh, form. Please I come again. heard Soumya. Yes, Saket, I heard. मैडम, क्या आपने सौम्या को सुना? हाँ साकेत, मैंने सौम्या को सुना। आप नाम बदल के सौम्या से पूछ लीजिए। सौम्या, have you here? Are you here? Sorry, madam. और come again, Saket. Heard. Soumya, you heard? Sorry, madam. आप Soumya, उसमें भी जाइए, ये तो मैंने। ओके सौम्या प्लीज आस्क मी। Did you hear? Soumya's voice is chopping. Saket, you ask me please. did you hear? Madam, please mute yourself, otherwise we will not be able to listen. Already network issues going on.
Saket, please ask me. Ask me, Saket. Network issue, network issue, network issue. Can I ask you, sir? Hello. Yes, Saket, you are audible now. हाँ साकिब, अब आपकी आवाज सुनाई दे रही है. Yes, Saket, you are audible. Soumya's voice was breaking. Only I am left. So I am ready. Saket is here. Saket is here. Saket, ask me. Ask me. Ask me. Soumya, Sir, ask me. now, uh, sir, Network issue. yes. Soumya. Sir, did you hear? Sir, Yes, did you, I heard. sir, did you hear Sir, Soumya? Network. So, sir, my network is, I think, correct. My network is going right. क्या बोलूँ मैं, मेरा नेटवर्क ठीक चल रहा है. So I can try. Can I try? So can I try? The network of your device is going very well. So it means God bless me. Can I try? Now I'm asking the question. Ma'am, did you hear Soumya carefully? Okay, thank you, sir. Ma'am, please answer me. Did you hear Soumya carefully? Sir, I heard Soumya carefully. आपका उत्तर सही शब्द से शुरू हुआ नहीं है मैम. Did you hear Soumya carefully? Yes, I heard Soumya carefully. क्या आपने सौम्या को ध्यान से सुना था? हाँ, मैंने सौम्या को ध्यान से सुना था. अब नाम बदल के सौम्या से यही सवाल आप कीजिए. सौम्या, सौम्या, did you hear carefully? अब मैंने आपसे नाम बदलने का निवेदन किया, शायद आप समझ नहीं पाई. ओह, आप कैटरीना सो रख दीजिए, माधुरी दीक्षित रख दीजिए, ओके. सलमान खान रख दीजिए, शाहरुख के बेटे का नाम रख दीजिए, खूब न्यूज में है आजकल, कुछ भी रख दीजिए. सौम्या, did you hear रेनूज केयरफुली? रेनू, सर सौम्या तो फिर मैं बोल ही रही हूँ तो. सौम्या, तुम एक काल्पनिक सवाल मुझसे पूछो. sir, did you hear Katrina carefully? No, I could not hear her carefully. I'm sorry. तो मैंने पहले शायद. Complete the process, सौम्या. सर, क्या आपने कैटरीना को ध्यान से सुना था? माफ कीजिए, मैं उसे ध्यान से सुन नहीं पाया. I could not hear her carefully. Pramila madam, did you hear Dilip Sahab carefully? नो सर, आई डिड नॉट हियर दिलीप शाह केयरफुली. मेहता मैडम, क्या आपने दिलीप साहब को ध्यान से सुना था? नहीं सर, मैंने दिलीप शाह को ध्यान से नहीं सुना था. अब आप सौम्या से एक सवाल करें. सौम्या, डिड यू हियर रेनूज केयरफुली? डिड यू हियर
Did you hear? Did you hear Renu's? Come Sumya, again. Come again, sir. Sumya, did you hear him carefully? Yes sir, I heard him carefully. क्या तुमने उसको ध्यान से सुना था? हाँ सर, मैंने उसको ध्यान से सुना था। साकिब भैया, डिड यू हियर हर केयरफुली? Network problem, madam. मैडम, डिड यू हियर हर केयरफुली? Soumya, I heard her carefully. भैया क्या Yes. Come again, Soumya, Am with I name. audible, Soumya? Announce. यस भैया, नाउ यू आर ऑडिबल। भैया, डिड यू हियर हर केयरफुली? Yes, Soumya, I heard her carefully. क्या आपने उसे ध्यान से सुना था? Am I? हाँ सौम्या, मैंने उसे ध्यान से सुना था। मैडम, डिड यू हियर देम केयरफुली? Yes, I heard them carefully. क्या आपने उनको ध्यान से सुना था? हाँ, मैंने उनको ध्यान से सुना था। सौम्या, did you hear his carefully? सॉरी मैम। सॉरी मैडम। मैं कहाँ गड़बड़ कर। कम अगेन। Did you hear? Did you hear him carefully? यहाँ से कोई वर्ड सर। Did you hear her carefully? Did you hear him carefully? यस, आई हर्ड हिम केयरफुली। नाउ तो हिम रिपीट हो रहा था इसलिए नहीं बोल। नो, यू आर यूजिंग हिज लास्ट टाइम। ओ हे, मैं चेंज करने की सोच रही थी ना, इसलिए हुआ। आई नो हिम इज करेक्ट, बट हिज हिम इज इज नॉट। करेक्ट बट हिज इज नॉट। His is not correct, but I want to change that word, so I am saying him. Did you hear him carefully? यस, आई हर्ड हिम केयरफुली। क्या क्या आपने ध्यान से उसको ध्यान से सुना था? हाँ, मैंने उसे ध्यान से सुना था। साकिब भैया, डिड यू हियर द स्पीच ऑफ नरेंद्र मोदी केयरफुली? यस सौम्या, आई हर्ड द स्पीच ऑफ नरेंद्र मोदी केयरफुली। क्या आपने नरेंद्र मोदी जी की स्पीच ध्यान से सुनी थी? हाँ, मैंने नरेंद्र मोदी जी की स्पीच ध्यान से सुनी थी। मैडम, डिड यू हियर द वॉइस ऑफ स्पैरोज? Yes, I heard the voice of sparrows. मैडम, क्या आपने चिड़ियों की आवाज़ सुनी थी? हाँ, मैंने चिड़ियों की आवाज सुनी थी।
Soumya, did you hear the conversation of Jha sir carefully? Yes, I heard the conversation of Jha sir carefully. क्या आपने झा सर की बातचीत ध्यान से सुनी थी? हाँ मैम, मैंने झा सर की बातचीत ध्यान से सुनी थी। यहाँ अब यहाँ विराम देते हैं दोस्तों। मेहता मैडम, आपने गौर किया होगा कि ये बच्चे फटाफट काल्पनिक ऑब्जेक्ट लगा रहे थे, और इस विषय पे हमारी और आपकी चर्चा हो चुकी है, क्योंकि बिना काल्पनिक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रखे या काल्पनिकता को आगे बढ़ाते हुए हम कितनी बात कर पाएंगे? देखिए, सोचिए आप खुद। तो और ये किताबों से नहीं मिलेगा, ये हमें अपने एनवायरनमेंट से मिलेगा। मैं बार बार टीवी की ओर संकेत करता हूँ, बच्चा टीवी देखो, तो टीवी में सीरियल्स चलते हैं, मूवीज चलती हैं, उससे हमें बहुत तेजी से सीखने मिलता है। मेरे पास रिकॉर्डिंग तो नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता। हाँ, वो बच्चे जरूर मौजूद हैं जो यहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे हॉस्टल भी था। तो जो बच्चे गांव से आते थे, वो गांव के बच्चे कैसे होते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो उनको मैं हर सैटरडे को इंग्लिश मूवी दिखाता था, मेरे पास कलेक्शन था, और हिंदी डब्ड दिखाता था, और चुनी हुई मूवीज दिखाता था, क्योंकि अंग्रेजी फिल्मों के नाम पे एकदम पेरेंट्स के मन में अन्य विचार आ जाते हैं। तो मैं सिलेक्टेड मूवी देख लेता था जो बच्चों के स्तर की हो, उससे उनमें बहुत तेजी से विकास देखने मिला। फिर कभी कभी वो बीच में भी कभी बोल देते थे कि सर आज पिक्चर दिखाइए, तो मैं बीच में भी कभी वीक डेज में भी दिखा देता था। क्लास वगैरह सब समाप्त हो जाती थी, इसी क्लास में आप यहाँ पीछे की ओर देखिए, आपको कुछ मैट्रिसेस, रेडीमेड मैट्रिसेस रखे दिख रहे होंगे, 3 है। ये टेंट हाउस वाले प्रयोग करते हैं, और इस क्लास में उसका आयोजन होता है। सुंदरकांड का तो हर शनिवार को होता ही है, और एक अखंड रामायण भी होती है जो पूरा 24 घंटे चलती है। तो उस दौरान मैट्रिसेस की जरूरत पड़ती थी, तो बच्चे बढ़िया यहाँ पे लेट जाते थे, और ये यहाँ टीवी आप देखिए ये लगा हुआ है, तो इसमें मैं उनको मूवीज दिखाता था। ये रेफरेंसेस के लिए है। अभी वो ऑनलाइन में मेरी सेटिंग बन नहीं पा रही है, उतना मैं टेक्निकल अभी नहीं हो पाया, नहीं तो आपके हर सवाल के जवाब में मैं खट से टीवी ऑन करके जवाब वहाँ मौजूद है। आप यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये पेन ड्राइव लग गई है, इसमें मैंने सब कलेक्शन करके रखा है। बहुत सारे विज्ञापन हैं, मूवीज की कटिंग्स हैं, वीडियोस हैं, बहुत सारे सब कलेक्शन है इसमें। एक ये है, और एक ये पेन ड्राइव है, इसमें चैप्टर्स हैं और इसमें प्रेरक चीजें हैं। तो इन सब का मिला जुला स्वरूप बच्चों को जब मिलता है तो उनमें बहुत तेजी से विकास देखने को मिलता है। अभी एक आध बार मैंने कोशिश की थी तो क्लियरिटी नहीं आई थी, मैंने आपको यहाँ टीवी में दिखाने की कोशिश की तो बहुत क्लियरिटी नहीं आ पाई, तो प्रयोग सफल नहीं हो पाया। उस पर थोड़ा सा काम चल रहा है। बच्चे ने बोला कि सीधे आप मोबाइल में ही ये सारी चीजें ले सकते, हालांकि बहुत ज्यादा जगह लगेगी उसमें, क्योंकि ये तो पेन ड्राइव बहुत बड़ी बड़ी पेन ड्राइव है, 8 GB 16 GB की। ये 16 GB की है, 8 GB। अब मोबाइल में इतनी जगह मतलब इस वाले में तो नहीं है, तो मैं उसको भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है कि साउंड नहीं आता है कई बार, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपको चित्र तो दिखने लगेंगे लेकिन साउंड नहीं आएगा। तो फिर मैं आपके कई सवालों के एकदम तात्कालिक यहीं से स्क्रीन शेयर करूंगा और फट से दिखा दूंगा। तो क्या है, देखने से कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर बनता है। सुनने, जैसे अभी आपने देखा कि साकेत इस सवाल के जवाब 100% नहीं दे पाए, आप भी नहीं दे पाए,
पाए। आपने बल्कि ये भी जानकारी दी कि उस समय आप नए आए होंगे, ज्वाइन नहीं किया होगा। ओके, इट इज एक्सेप्टेड। But Soumya answered accurately without explaining, expanding anything. Her answer was absolutely right. Okay, let's come to the point. Saket, restart this sentence. Who has to make So this sentence? I have to make this sentence. Uh, it is this sentence is related to B path. It is a WS sentence. कैसे First of पहचाने कि ये WS sentence? सर, क्योंकि इसमें सेंटेंस के बीच में क्या लगा हुआ है. Firstly, I will take the WH word, and the WH word is what. Then, then I will take the main verb, and the main verb is was. Uh, Lastly, I will take the object, and the object. Sorry. Then, lastly, I will take the subject. Okay, now you are right. Carry on. Uh, Lastly, I will take the subject, and the subject is it. Uh, It is Lastly, correct. and then I will put the question mark. सौम्या, तुम यहाँ क्या रखती बेटा? Come again, sir. तुम यहाँ पे क्या रखती? That. ओके, मेहता मैडम आप क्या रखती हैं? that, अब मैं रख देता हूँ। किसी को प्रेजेंट में जाके बोलिए आपका बहुत सुना हुआ सेंटेंस। बी प्रेजेंट। सर वह shows that, यह shows this, what was that, what was this, what was that. करेक्ट। आई वॉज लिटिल कंफ्यूज। आई थॉट हमने यह क्या था दिया है, ऐसा मुझे थैंक यू, आई एम सॉरी। चलिए अब क्रिएटिविटी के सागर में गोते लगाते हैं। सर, इट गलत होगा। प्रश्न अच्छा है, थोड़ा सा जवाब अभी, थोड़ा बाद में। इट आमतौर पर प्रोनाउन की तरह प्रयोग किया जाता है, नाउन के स्थान पे आता है दूसरे सेंटेंस में। मैंने इस चैप्टर को पिछली बार मेहता मैडम थी और तुम भी थी, शुरू करने की कोशिश की थी। पर्सन शुरू किया था मैंने, फर्स्ट पर्सन, हल्का सा याद है? वहां से आगे बढ़ती कुछ पेचीदगियां, और पता नहीं उस दिन जो भी हुआ, अपन आगे नहीं बढ़ पाए, लोग भी कम थे। हम तो पूरे मन से आए थे उस दिन की ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको दे दिया जाए। आप उसके महत्व का अंदाज अभी नहीं लगा पाएंगे, लिखने को तो 3 लाइन लिखी हुई है उसमें, लेकिन जब हम उसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे तब आप उसको समझ पाएंगे। चलिए उस पर हम बाद में आते हैं, अभी हम इसी को लेके चलते हैं। हम 2-3 राउंड खेलेंगे और इसमें क्रिएटिविटी की परिकाष्ठा तक हम आपको लेकर जाएंगे, द एक्सट्रीम ऑफ क्रिएटिविटी। सौम्या, व्हाट वाज दैट? Sir, that was my book. वो क्या था? सर वो मेरी किताब थी। साकेत भैया, व्हाट वाज दैट? सौम्या, दैट वाज टाइगर। वह क्या था? वह शेर था।
Madam, what was that? That was my instruments. मैडम वह क्या था? वह मेरा इंस्ट्रूमेंट था। अब ये बुक सरासर गलत हो गया व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों। मैं सौम्या को 3 का दंड थोड़ी देर बाद दूंगा और साकेत को भी। दोस्तों यहाँ पे एक वचन बहुवचन है तो छोटी सी चीज, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर वो नंबर। हाँ, इंस्ट्रूमेंट। ये चीज पर हम चर्चा कर चुके हैं मेहता मैडम से बच्चों। उन्होंने ध्यान दिया होगा जब मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ तो तुम लोग म्यूट करके ध्यान से सुनते हो। इस पे मेरी चर्चा लंबी हो चुकी है मेहता मैडम से। वो सुधारने के चक्कर में बिल्कुल म्यूट करना भूल जाती हैं और उस समय बोलती रहती हैं। तो जो चीज यहाँ से वहां तक पहुंचना चाहिए वो बीच में कहीं रुक जाती है और ये चीज उनको निरंतर प्रतिदिन परेशान करती है। लेकिन दिस इज ऑल पार्ट ऑफ प्रोसेस। रिपीट योर क्वेश्चन टू मैडम। मैडम what was that? That was my instrument. मैडम वह क्या था? वह मेरा इंस्ट्रूमेंट था। सौम्या, I'm ready to answer, ma'am. okay, sir. Unmute Sir, yourself. what was that? That was a little mishap. वह क्या था? छोटी सी दुर्घटना थी। Have you got new word? Have Yeah, you read it? yeah. It came on your screen. Should I Screen. repeat? This word Sir, disappear. please repeat. Please repeat. This word immediately disappeared. Firstly, I would like to request Mehta Madam to mute. Thank you. Soumya asked me the same question. Sir, what was that? Beta, it was a little mishap. सर वह क्या था? छोटी सी दुर्घटना थी। साकेत asked me. Sir, what was that? It was a little mishap. सर वो क्या था? एक छोटी सी दुर्घटना थी। दोस्तों मैं क्या करता था जब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, शुरू में इंग्लिश का कीड़ा काटा था, तो मैं ऐसा लिख लेता था किसी चीज को। माँ में छोटी की मात्रा मी, सा छोटा सा, हा में की मात्रा पा छोटा पा, तो बाद में उसको डिक्शनरी में ढूंढ लेता था। Soumya, what was that? Sir, that was my uncle's farmhouse. वो क्या था? वो मेरे अंकल का फार्म हाउस था। साकिब भैया, what was that? That was a thief. वह क्या था? सौम्या वह चोर था। Am I audible? Yes, भैया। Madam, what was that? That was a beautiful garden. मैडम वो क्या था? वो एक बहुत सुंदर गार्डन था। Sir, what was that? Actually, madam, that was a normal misunderstanding. वह क्या था? वो एक सामान्य सी गलतफहमी थी। Now they are okay. They are playing with each other. Soumya, what was that? Sir, that was my mistake. अब आए तुम, so dear you are. बेटा वस्तु रखना तो बहुत आसान है,
वो क्या था? सर वो मेरी गलती थी। साकेत भैया, व्हाट वाज दैट? My sentence. Uh, Let me give some more time. मेहता मैम, व्हाट वाज दैट? दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम। वह क्या था? वह बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सर व्हाट वाज दैट? दैट वाज लव। वह क्या था? वो प्यार था। सौम्या, व्हाट वाज दैट? सर दैट वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। वो क्या था? सर वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। साकेत भैया, व्हाट वाज दैट? That was a big blunder. वह क्या था? वो एक बहुत बड़ी गलती थी। मैडम, what was that? दैट वाज जू। दैट वाज अ ब्यूटीफुल जू। कम Complete the द process. मैडम, वो क्या था? वो वो एक सुंदर जू था। सर व्हाट वाज दैट? Actually, that was an extreme possession of a daughter towards her father. ओह, वह क्या था? म्यूट किया। Actually, वह एक बिटिया का अपने पिताजी के प्रति extreme possession था. She was very possessive about her father. अब इसका हिंदी, आई एम सॉरी, यू विल हैव टू फाइंड इन द गूगल. Soumya, what was that? So that was unconditional love between mother and daughter. वह क्या था? वह एक माँ और बेटी के बीच का अनकंडीशनल प्यार था। निशर्त न- प्रेम. हाँ, निशर्त प्रेम था। वाह, अब आ रहे सा, हैं सही उत्तर. साकेत भैया, व्हाट वाज दैट? That was a silly mistake. वह क्या था? वो एक छोटी सी गलती थी। मैडम, what was that? That was a good relation between doctor and patient. मैडम, वो क्या था? वो डॉक्टर और मरीज का एक अच्छा रिश्ता था। ओह, म्यूट कर दिया था। सर व्हाट वाज दैट? Well, that was a deal between two nations. वह क्या था? वह दो देशों के बीच की एक संधि मात्र थी. That was just a deal between two nations. I will not cross your border, you will not cross my border. That's all. Soumya, what was that? Sir, that was my dedication towards my goal. वह क्या था? सर वह मेरे लक्ष्य के प्रति मेरा डेडिकेशन था, समर्पण. समर्पण था। वह मेरे लक्ष्य के प्रति मेरा समर्पण था। साकेत भैया, व्हाट वाज दैट? That was a partnership between you and me. वह क्या था? यह हमारे बीच साझेदारी थी।
Madam, what was that? That was the conversation between my son and me. मैडम वह क्या था? वह मेरा और मेरे बेटे के बीच की बातचीत थी. सर, what was that? That was nothing. वह क्या था? कुछ नहीं था. सर, something was there. कुछ तो वहां था. अगर आप आगे बढ़ाना चाहती वार्तालाप को तो फिर चलिए ग्रामर से बनाते हैं. Okay. There was definitely something. What was something? बोलिएगा, आपको बोलना है ये सेंटेंस. मैं आपके बिहाफ में बोल रहा हूँ. अगर व्याकरण से ही आगे Okay. बढ़ना है तो इसको हाँ. ऐसा बोलना पड़ेगा. There was definitely something. ऐसा Okay. बोलना पड़ेगा इसको. There was definitely something. Okay. Yes, I know, but I don't want to share. हाँ, मुझे पता है लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाहता. That's why I said there was nothing. Okay, no problem, sir. As you like. सौम्या, थोड़ा सा बढ़ाए. What was in your mind, सौम्या? Sir, there is there. Come again, sir. बेटा अपन बी पास. We are going in B past. B past is going on. Okay. There was a हाँ. determination in my mind to learn English uh, as much fast as I can. आपके जहन में क्या था? सर, मेरे जहन में एक दृढ़ संकल्प था कि मैं जल्दी से जल्दी इंग्लिश कैसे सीखूं. नहीं, मेहता जल्दी मैडम, से इसमें थोड़ा टाइम तो लिया लेकिन आंसर अच्छा दिया. तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो एकदम रटे रहती है चीजें या पहले से मालूम है, क्योंकि मैं कौन सा प्रश्न कर दूंगा या साकेत क्या प्रश्न कर देगा या ए या बी या सी क्या प्रश्न करेगा हमें नहीं पता होता है. और इस प्रक्रिया का नाम है राइट ब्रेन का एक्टिवेशन. एक्चुअली पता नहीं आप लोग इस बात को सैद्धांतिक रूप से कितना समझ पा रहे हैं. हमारे लेफ्ट ब्रेन का प्रयोग किया गया है बदस्तूर 27 साल तक. चीजों को रटने का हमें अभ्यास दिया गया है. यहाँ एक्सटेम्पो होता है सब कुछ. एक्सटेम्पो मतलब बिल्कुल तात्कालिक आपको प्रदर्शन करना होता है. पहले से सोच के आप कुछ भी नहीं रख सकते. चलो हम इस राउंड को पूरा करके हमारी बैटरी जा रही है तो पूरा करके फिर आप लोग व्हाट्सएप में क्वेश्चनिंग आंसर करें और हरा बटन दबा के करें. आस्क. साकिब भैया, what was in your mind? There was examination pressure in my mind. आपके जहन में क्या था? परीक्षाओं का दबाव मेरे जहन में था. मैडम, what was in your mind? There was a beautiful dream in my mind. आपके जहन में क्या था? मेरे दिमाग में एक सुंदर सपना था. Please unmute yourself. Sir, what was in your mind? There was nothing in my mind. By God. आपके माइंड में क्या था? कसम से कुछ नहीं था.
सर देखिए, पता नहीं इस बैच में वो एंजॉयमेंट क्यों नहीं आ पाया, आई रियली डोंट नो। आप किसी दूसरे इस बैच का, विशेषकर 12 बजे वाले बैच की वीडियो देखिए, लोग मुस्कुराते ही रहते हैं, ठहाके लगाते रहते हैं। आप देखिएगा, हाँ कभी कभी गंभीर चर्चाएं भी होती हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आप मुस्कुराते चेहरे ही पाएंगे। क्योंकि जब तक आप इसको एंजॉय नहीं करेंगे, इसको क्या, जीवन में जो भी चीज आप कर रहे हैं, इफ यू डू नॉट एंजॉय वट एवर यू आर डूइंग, द रिजल्ट्स विल कम little late. Results will come, but they'll come little late. But if you enjoy see, the basic funda of my teaching is, I read somewhere in a poster, enjoy the work you do and do the best you can. Enjoy the work you do and do the best you can. That's all. This is the fund of my life. आप जो करते हो बहुत अच्छे से करो, उसको एंजॉय करो। एंजॉय द वर्क यू डू एंड डू द बेस्ट यू कैन। आप अपनी तरफ से जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हो करो, वेदर नोबडी इज नोटिसिंग यू, भले ही कोई आपको नोटिस कर रहा हो या ना कर रहा हो, इट शुड बी योर नेचर। I don't know how I got this nature, from where I got this nature, but wherever I was, from the beginning, my, the the teaching was not my bread and butter. The teaching was not my bread and butter. पढ़ाना मेरी रोजी रोटी शुरू से नहीं थी. It was not for my bread and butter. But whatever I did in my life, I enjoyed it. After reading this poster somewhere, I started enjoying whatever I used to do. चलिए एक छोटा सा राउंड खेलते हैं. हमारे मुंह से आज 2 बार निकल गया. I used to smoke. Earlier I used to smoke. पहले मैं सिगरेट पिया करता था. एक सेंटेंस सौम्या तुम बनाओ. Earlier I used to write diary. पहले मैं डायरी लिखा करती थी. इसमें ताथा थैया कर सकते हैं आप, पास्ट सिंपल में नहीं कर सकते. इंग्लिश मीडियम इसी का प्रयोग करते हैं. इंग्लिश मीडियम साकेत. Earlier I used to go gym. पहले मैं जिम जाया करता था. मैडम सर अर्लियर आई यूज टू मैनी चलिए मैं आपके ओके बिहाफ में एक सेंटेंस बना देता हूँ. अर्लियर आई यूज्ड टू डांस. पहले मैं डांस किया करती थी. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. सी यू टुमारो. कल आना है कि नहीं, कि कल छुट्टी रखना दशहरे की? एज यू विश. इन्फॉर्म मी इन व्हाट्सएप. ओके, थैंक यू.